Admin recording. So, नमस्कार। वेबिनार की इस श्रृंखला में, ज्ञानोत्सव वेबिनार की श्रृंखला में आज हम लोग एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग प्रोड्यूस एक्ट था, एपीएमसी, अनाज मंडी से संबंधित जो एक्ट था बिहार में, उसके रिपील होने के बाद, उसके समाप्त होने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के दो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है हमारे साथ। एक तो जो स्पीकर आज के मेन स्पीकर है मनीष जी। मनीष जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली के एक जाने माने संस्थान में, जिसको कि हम लोग डी स्कूल के नाम से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और वहाँ ये अभी पढ़ा रहे हैं और इनका शोध जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, खासकर बिहार संबंधित। और इनके साथ आज की जो हमारे डिस्कसेंट हैं या जो मॉडरेटर हैं, अवनींद्र ठाकुर। अवनींद्र जी जिंदल विश्वविद्यालय में, जिंदल जो हरियाणा में है, वहाँ पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन दोनों विद्वानों से आज हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार भारत बिहार में अनाज मंडी से संबंधित जो नीति थी उसमें बदलाव का क्या असर पड़ा। हमारे साथ और भी कई महत्वपूर्ण विद्वान हैं, अवधेश जी भी हैं और कई ऐसे विद्वान हैं जो कि इस विषय की अच्छी जानकारी रखते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है और मैं सीधा जो मंच है वो मनीष जी को दे रहा हूँ। मनीष जी अपनी बात शुरू कर सकते हैं। यदि आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो इसे जब कहेंगे उसको शेयर कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अवनींद्र जी से सुनेंगे इसके बारे में। स्वागत है मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अगर परमिशन दे देंगे तो मैं शेयर कर पाऊंगा शायद। हाँ जरूर, मिल जाएगा शेयर, बिल्कुल जी। एडमिन स्क्रीन शेयर। जी धन्यवाद। Should I start? Abhinendra? Please. So basically we are going to discuss about agriculture markets in Bihar, constraints and opportunities. First of all, I would like to thank Abhinendra sir for sharing this opportunity and Professor PKC for allowing me to present my work here. So this work is basically based on my PhD, which I submitted at JNU in 2019. And for this work, some part of this work is directly based on field work which I conducted in Bihar, 2 districts of Bihar, Katihar and Patna. So I will be discussing those findings as well in this presentation of 20-30 minutes. Is that okay? 25 to 30 minutes? Okay. This is also published in a book edited by director of Patliputra School of Economics. So I'm just presenting very old, my old work, but quite relevant. So agrarian distress in Bihar has various explanations. So we have been discussing about agrarian distress in Bihar, and there are many chapters of it. So some people believe that it is largely because of poor irrigation in Bihar. So in some part you are experiencing flood-like situation, and in some part you don't have water for proper irrigation. So irrigation is broadly considered as one of the explanation, which I call technocratic explanation. And I have borrowed this word technocratic from my supervisor, Professor Praveen Jha, who is also from Bihar. So poor irrigation can explain to some extent the agrarian distress in Bihar. Then another explanation is low level of input use, especially fertilizers and various other kind of input that we use for cultivation. The third explanation suggests that land is very much fragmented in Bihar, and that's why because of economies of scale, there are some this kind of fragmented land, cultivation on fragmented land is not viable. The fourth explanation suggests that lack of credit and extension services for farmers in Bihar, and that results in poor
cultivation, and poor output from the agriculture. So as a whole, we have this technocratic explanation. But obviously, this technocratic explanation has a limitation, and this is not adequately present the total situation, the overall situation of agrarian distress in the state. So one example is groundwater irrigation was promoted through increasing tubewell density during 1980s. Subsequently, the yield increased, and that was also accompanied by increase in use of fertilizers. So obviously, this criticism that adoption of technology is not very up to mark in Bihar, that criticism has some limitation. The impressive expansion of yield during the mentioned period could not sustain even after increasing. So we increased tubewell density in Bihar, especially in South Bihar and some part of North Bihar. But the increase because of this could not sustain. Even if the major technocratic efforts are required for the growth of agricultural output, it may not result in improvement of livelihood of the actors. So that is also a reality, that even within that period, when agricultural output increased due to increased density of tubewell, that did not translate into the improvement of livelihood of farmers dependent on this kind of agriculture in Bihar. So obviously, technocratic explanation of agrarian distress is inadequate, and we need to adopt some alternative explanation. So what do we have? One explanation is from Professor Amartya Sen's theory, which basically summarizes that there is a poor public provisioning, and poor public provisioning can explain the agrarian distress in states like Bihar. What does it mean? It means that for backward linkages and forward linkages, there is a need for public provisioning, and obviously that is required to bring out farmer from the agrarian distress. Another alternative explanation is semi-feudal hypothesis. So in semi-feudal model of Professor Amit Bhadri, primary linkages is basically land, and the secondary is credit. So it is understood that because of peculiar kind of land relation in different parts of the country, farmers are in a very severe kind of debt trap. As a result of that, they are facing crisis, which also results in agrarian distress. Question of land is also very important when we are discussing about Bihar. Bandyopadhyay Commission has several recommendations. Unfortunately, those recommendations were not adopted by subsequent governments. Theory. So now, after discussing this kind of alternative explanation, what we can say in brief sense that obviously various linkages with the farmer or the cultivation are important to explain the agrarian distress. It may not be only backward linkages or forward linkages. So can we imagine, or can we think about a theory of agrarian system where we are talking about the linkages, backward linkages with farmers and their forward linkages as a whole? So in agricultural value system, it includes agricultural and non-agricultural sections, which have various actors who interact with each other in presence of embedded power positions. And this power position is very important. Let me explain in a while. So in this agricultural value system, what I'm saying that there are various actors. So there are suppliers of land, suppliers of credit, suppliers of fertilizer, etc., with which farmers are connected. Farmers cultivate on that land, and they use their labor power or higher labor power, and as a result of that, they produce something which they sell in the market. So this is how agriculture value system is not only agriculture or cultivation, or it is not only about farmers. It is about a connection between different kinds of actors who are part of agriculture as well as non-agriculture. So it's a combination of these two segments. Now, what do we mean by embedded power position? So basically, when farmers interact with actors in the forward linkages or actors in the backward linkages,
they interact with their respective power position. So according to Marx, so in all exchange, power is present, power cannot be ignored. And when you are providing any commodity to any person, then in this exchange, this power is very much there, which actually in some sense, in the market sense, it also translates in the price that farmers receive, or the other kind of linkages that they have. If there is any question on this part, I will explain that, because due to lack of time, I'm just moving ahead with this much understanding on the AVS. So agriculture value system is basically combination of agriculture and non-agriculture segment. आपकी आवाज कट रही है सर। मनीष सर, हेलो। जी जी, हेलो, आप बोल सकते हैं। आ रही है आवाज सर? जी जी आ रही है सर। मैं एक ही चीज इसमें जानना चाहता हूँ कि अवधेश जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। और मुझे लगता है क्या कि जब प्रेजेंटेशन हो रहा है, सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए जो क्वेश्चन है वही पूछा जाए। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग लंबे समय में डिबेट करेंगे इसके बाद। सो अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, या मुझे लगता है कि उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हो तो बेहतर है। जी अभी प्रेजेंटेशन होने दीजिए अवधेश जी, प्रेजेंटेशन होने दीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब एग्रीकल्चर वैल्यू सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक पावर पोजीशन जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के बीच में है, वो विद्यमान रहता है हमेशा। सो नाउ देयर इज क्वेश्चन कि इस चीज को, इस पावर पोजीशन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें एग्रीकल्चर के साथ क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, जिसको हम लोग आगे आंसर करने की कोशिश करते हैं बिहार के एग्जाम्पल से, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो so we find structural deprivation of agriculture in the agriculture value system on two accounts. Number one, the surplus generation capacity of agriculture is very much limited. In cultivation, you require, in Marx has explained this part in his theories of surplus value, where he talks about agriculture, and he says that in case of agriculture, you need to wait for some time to get the result. So basically, you are sowing the seed, then you require certain time when nature would do its work, and then as a result of that, after some point of time, you will get the fruit. So unlike industry or any manufacturing sector, where you have the possibility to increase the production process, the speed of production can be increased by employing more and more labor power. So you in manufacturing industry, you are producing something with 10 unit of labor, you want to increase it, you can increase the number of labor unit. That kind of possibility is not there in case of agriculture. So you are sowing seed, then after some time you will have to wait and allow the nature to play its role, and as a result of that, you will get that. So since you don't have possibility to increase the surplus through employing more and more labor power, so that creates a limitation of surplus generation in case of agriculture. So that is number one. Number two, which Michael Kleski has written in his book about agriculture sector, he says that majority of people are dependent on agriculture, and the price of agricultural products are generally demand determined, because farmers are coming to the market as a price taker. They are not actually price maker. They are not deciding the price. They are actually getting whatever market decides. Unlike manufacturing, where you have some kind of markup price or MRP, whatever you call it, so that is there, right? In case of agriculture, that is not there. So because of these two kind of things,
structural position of agriculture in the agricultural value system is weaker than non-agricultural segment. That is one thing. That is why what happens that when that also contributes in the respective power position of agriculture in the entire agriculture value system. So what I'm trying to say is basically agriculture by its own nature is weaker than the non-agricultural segment in the agriculture value system. And that causes transfer of surplus generated in agriculture. So surplus generated in agriculture is transferred from agriculture to non-agriculture segment because of this weaker position of agriculture in the entire agriculture system. This kind of analysis basically allows us to look at agriculture and look at the question of agrarian distress in a very different way, where you are not only asking, explaining the agrarian distress in terms of technocratic explanation or in terms of the land question, etc. alone. So this kind of explanations are also important, but in case of agriculture value system, we are combining everything together. So this is the broad theory behind the work that I'm going to present just now. So this is the theoretical background. Now let's look at the situation of backward linkages, basically different kind of inputs required for cultivation. For that, farmers are paying different prices in different states. This is the situation in 2018-19 in Bihar. So as you can see, the green bar here, that is for Bihar, which is towards, to some extent, the operational cost of cultivation is closer to national average. But in case of irrigation charges in Bihar is second highest after Haryana. So that is one peculiar thing that we can notice here, which causes some kind of loophole or some kind of burden on the farmers, that also explains that also agrees with the technocratic kind of explanation for agrarian distress. But that is not alone. Now let's look at the situation of value of paddy produced in Bihar and value of main and byproduct. This information is provided by CACP, Commission for Agricultural Cost and Prices. They calculate cost of operational cost of cultivation, fixed cost of cultivation, etc. There are various things. Apart from that, they also provide information on value of main product and byproduct. In case of paddy, the main product is, we know that it's rice and it's paddy, and the byproduct is the paddy straw. So the total value that they calculate is given in front of us. So I have taken a data from 2005-06 to 18-19 in Bihar. And this is nominal rate. So increase in the height of bar does not represent the increase in the value. So what I'm trying to explain here is basically, if you would look at even the government understanding of total income that farmers of paddy get in Bihar, that is given in front of us. In 2005 and 6, this difference between value and cost is minus 578. This is official data. So in most of the years, we see that farmers in Bihar are making loss, even if you consider the official kind of data. Now, so that explains somewhat the backward linkages kind of situation to explain the loss of farming. Now, this is price side and market, which is basically part of forward linkages that we have. There is very interesting paper by Avnindra Vihar recently, which is under publication, and one working group of the same paper is available on the website of Jindal University, where he talks about the relation between public procurement and the price that farmers get even in the market outside public procurement. So in the free market, what they are getting. So public procurement has a very positive role even in the market, which is not directly under the government regulation. So for a better price in the government regulated, better price in the free market, also
there is a need for public procurement, a strong presence of public procurement. So this is another kind of interpretation which is given in front of you. In 2018-90 this survey, NSS survey, they also asked a question to farmers, all farmers, that are you satisfied the price that you are getting, and what is the price that you are getting? If you would draw the this on any graph, then you would find that satisfaction of farmer is actually higher where public procurement, presence of public procurement is very high, and that's very true. So whatever methodology you use, you will get this result only, that for better price, even in free market, you require a strong presence of public procurement for any crop. So let's look at situation in Bihar. This is from 2013 situation assessment survey of agricultural households. Majority of farmers in Bihar, in case of Bihar, medium and large category is meaningless because the number of farmers in these categories are very less. But whatever you see, there is a strong presence of local private trader in the forward linkages. That is there, local private traders. Presence of public procurement is nominal. Even in the next situation assessment survey, that is 18-19, there also you would see the public presence is very nominal in the output segment. If you look at the price that farmers are getting, so majority of, in fact, 96% of Indian paddy farmers are Bihar paddy farmers received less than MSP, and we have all seen that there was a debate recently in the recent past regarding MSP price, etc. And we know that if farmers are not getting MSP, they are basically making loss, right? So in situation, if you would look at the situation of Bihar farmers, 96% of farmers, paddy farmers, are receiving less than MSP, and together with price equivalent to MSP, their proportion is 99%, and only 1% farmer receive more than MSP. So that is the situation in Bihar. Agencies to which farmers sold cereals in Bihar, there is a comparison between last two situation assessment survey. Public procurement 11%, and that declined to 7%. Other than public, that is 97%, which is an increase from 89%. This is based on the data from FCI. Now, just to locate the link, everything, the forward and backward linkages in Bihar, I did two field work that I am going to present just now briefly. So the first field work was done in Kuretha village, Katihar district, Bihar, where that district was flood affected, and as a result of flood, 76% of the cropped area, paddy cropped area, was destroyed. Out of remaining products output, the harvest, farmers used 40% for their own consumption, and 60% was sold to local private traders. The own consumption method is very simple there, that they parboil it in their households, or they hire some professional parboilers in the village, which is close to 20%. They go to the local rice huller, and after that, they receive rice for their own consumption. The 60% which was sold to local private trader, majority of those went to Katihar Committee Market and Purnia Gulab Market. And that is given in front of us, whatever this channel there. So that was the structure of farmer flow chart for farmer in Katihar district. Now this is situation in Patna district, Kharbhaiya village. There we could find a small presence of public primary agriculture credit society packs, and 19% of the total output produced in the village was sold through packs, and they received MSP price. 59%
was sold to local trader. Obviously, the presence of local trader is very strong. Even in this case, 22% own consumption. So this is broadly the structure of अवधेश जी, आप म्यूट कर लें, थोड़ा सा आवाज आ रही है आपके साइड से. So if you would look at their return, then this is the two category that I have taken. One is farmer who basically own their own land, who cultivate their own land, and tenant farmer who cultivate on leased land. So if you would look at the surplus of farmer who cultivate own land, their return is 449 rupees per quintal. And if you consider tenant farmer, then who basically pays rent to landlord, their return is negative. Now there is important thing to understand here that even if farmer own their own cultivate their own land, there is some value that they are providing through their ownership of land, right? So this 449 cannot be considered as surplus. So the actual surplus which we need to consider, because there is an ownership of land which through which you are adding value to the product, and that is why this surplus which is in front of us for tenant farmer is actually the return that farmers are getting. So paddy farmer in these villages, this is the situation of Patna, and since majority of farmers faced loss of crop due to flood, all of them faced loss in absolute term. So even in case of Patna, you can see that farmers are making loss. Now look at the situation of other actors in the value system. Who are the other actors? As we have seen the value system in Patna and Katihar district. So the other value actors are local private trader, wholesalers, or rice mill, etc., or agent for rice mill. So in case of Katihar, farmers faced loss because of flood, but local trader, even in that situation, makes a return of 94 rupees per quintal. Wholesalers make a return of 60 rupees per quintal. Local trader in Purnia, they got 95 rupees per quintal, and wholesaler in Purnia got 70 rupees per quintal. So this is the situation of a district where farmers who are cultivator of these products, so farmers are making loss, but on the product that they have produced, other actors are making profit because they are part of the forward linkages. In case of Patna, you saw that situation. If you consider the land price there, farmers are making loss, but the return of local trader is 26 rupees per quintal, wholesaler 61 rupees per quintal, agent for rice mill 17 rupees per quintal, and rice mill is making 205 rupees per quintal. So the product owner, the main producer of the product are making loss, but at the same time, other actors in the value system are making profit. So what do we know? What do we understand from this table? So basically, the conclusion that we can draw from this table is is following. Number one, farmers are in a weaker power position in the agriculture value system. There is no doubt about it. Non-agriculture segment has a stronger power position in comparison with agricultural segment. That's why they are able to get positive return. And number three, which is most important, if you combine the first two, then you arrive at a situation on the value. When we are following the technocratic explanation of agrarian distress, then majority of authors, especially the mainstream agricultural economists, they are basically saying that the value of product produced by farmers in Bihar is less. So can we say that? Can we claim that?
we have seen that whatever they have produced, that can give the positive return to some actors, and that can give to negative returns to some other actors. But can we say that the value is less or more? Because one example that I generally give to my audience, that if paddy is produced in Bihar and the same variety of paddy is produced in Punjab, then ideally you should treat these two products in a similar way. You cannot say that basmati or some, there may be some qualitative difference. I'm not talking about the difference between basmati and non-basmati kind of difference. I'm just taking one example of Sona Masuri variety. So you are producing Sona Masuri in Bihar, and you are producing Sona Masuri variety in Punjab. You cannot say that value of one Sona Masuri is higher than value of another. This is what I'm saying, basically, that this value of product is decided on the basis of its exchange value and use value, right? And the use value and exchange value of these two same product produced in two locations are actually same, right? Obviously, you would include some kind of transaction cost, which can also inflate or increase the exchange value, etc. So I'm ignoring that for a moment, but I'm just trying to say paddy of a same variety in one location, paddy of same variety in another location cannot be treated differently when you are looking at the just value. So they are producing, the farmers of Bihar are producing something which is actually providing positive returns to other actors in the value system, non-agricultural actors in the value system, but farmers are making loss. So what is the way forward? The way forward is we need to look for such policies which can increase the income of farmers through their participation in a larger part of value system. Can we think about some kind of cooperative system? So these days there are many debates around cooperative, etc. So I'm not going to that discussion as of today, but we can discuss that in detail further. So we need a system where farmers can participate in the larger part of the value system, and through that they can actually stop the leakages of surplus from agriculture to non-agriculture segment. And this can be done through making formal markets more easily accessible to farmers and through price guarantee or enhanced public procurement. So these are the ways that we can think about and look for to bring out Bihar from agrarian distress. Thank you. Thank you, Manish, for very it's a wonderful description of agrarian condition of Bihar basically. मुझे लगता है कि बहुत important है समझना, because whenever we talk about agrarian distress, it's primarily a technocratic description. So we talk about irrigation crisis, we talk about some kind of very physical nature of that crisis, but it has to do, it's much more than that. In fact, it's social relations, it's basically political relations, it's economic relations across the stream which are playing more important role. So ये तो एकदम ही in fact मैं जब अभी ये देख रहा था तो few questions actually popped up. In fact, you have worked on Bihar, so दो तीन चीजें जो यहाँ important लग रही है. एक तो मुझे खुद query हो रही है, how agrarian crisis in Bihar is different than other part of the country like Punjab and Chhattisgarh. So first thing I also wanted, because you have worked on, I know that you worked on Bihar and Punjab also, and we earlier had a crisis. In fact, some of the literatures don't recognize that Bihar is actually having agrarian distress or crisis. So in fact, whenever you talk about agrarian crisis, it's primarily, we take name of Andhra, sometimes Punjab, sustainable crisis, another crisis as well. Maharashtra, that part. And in fact, they link that to, of course, indebtedness and irrigation and all. So one thing is, striking that, how do you differentiate between the agrarian crisis or like nature of agrarian distress in Bihar and other part
mainly northern part, okay, which already had agrarian, green revolution. So वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो है। दूसरी चीज जो है बिहार के संदर्भ में पर्टिकुलरली बहुत हाईलाइट हुआ है पिछले 10 सालों में, वो है मेज रेवोल्यूशन। अगर you see the news line, newspapers, even Indian Express, early 2013-14 में बहुत सारे न्यूज कवरेज थे जिसमें कहा गया था कि बिहार में अग्रेरियन रिवोल्यूशन हो गया है थ्रू मेज रेवोल्यूशन। सो बहुत सारी बातें कही गई उस टाइम में कि फार्मर्स की लाइफ चेंज हो गई है, सब कुछ हो गया। हालांकि ये पेपर लार्जली पैडी पे है, बट मुझे लगता है कि do you have some field based experience that how far that maize revolution or so called maize revolution has actually changed that nature of that crisis in Bihar? क्योंकि मुझे दूसरी बात लग रही है, मुझे लग रही है कि when we are talking about maize, it's high value crop and the fluctuations of price is quite high, from the time of harvest to a price at the time of sowing. So वो जो fluctuations है वो farmers के benefit में नहीं आकर ज्यादातर जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं बाकी लोग, जो फॉरवर्ड जो वैल्यू चेन के मेंबर्स हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज दे रहा है rather than that. तो एक वो बातें हैं। दूसरी कुछ बातें मैं और भी करूंगा इसके बाद, बट जिस तरह से यू हैव पुट फार्मर्स प्रॉफिट और बेसिकली इट्स नॉट एग्रीकल्चर विच इज मेकिंग लॉस, इट्स बेसिकली फार्मर्स विच आर बेसिकली सब्जेक्टेड टू दैट लॉस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में भी करूंगा। सो मैं स्टार्ट यहां से करता हूं और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। प्रदीप जी, पहले क्वेश्चंस ले लें या फिर पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस लें? आप उसको मनींद्र जी। मैं शिरीष चौधरी। हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, बिल्कुल। मनींद्र जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, अभिमन्यु आप अपना जी, म्यूट जी, कर बोलिए। लीजिए। अभी अभिमन्यु म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अभिमन्यु, यस सर। हाँ, म्यूट कर लीजिए जरा, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। जी श्रीश्चर। मनींद्र जी नमस्कार, मनीष जी नमस्कार। श्री जी, आप नमस्कार अवनिंद्र, नमस्कार। आप अवनिंद्र से बात कर रहे हैं, मनिंद्र से नहीं। अच्छा, चलिए। माफ कीजिएगा, मेरे लिए सभी ईश और इंद्र ही हैं, लेकिन आपने बड़े अच्छे विषय पर बड़ी अच्छी बात रखी है। मुझे पता नहीं कि मैं इसे क्वेश्चन कहूं या कमेंट कहूं, लेकिन हम लोग, मैं पेशे से तो किसान नहीं रहा, लेकिन हम लोग लार्जली किसान, गांव किसान परिवार के ही व्यक्ति हैं, और मैंने एक ट्रेडिशन, एक कल्चर को सरकार के द्वारा डेलिबरेटली तोड़े जाते हुए देखा है। तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि मैं इसे क्वेश्चन कहूं या कमेंट कहूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप, हो सकता है आपने उस विषय पर उतना पीछे नहीं गए हो, तो आप कह दीजिएगा और मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं गए हो तो बताइएगा। हम एग्रीकल्चरली काफी अच्छा कर रहे थे, हम थ्राइविंग। बिहार स्वतंत्रता के समय में भारत में कृषि और कृषि उद्योग के लिए पहले 6 राज्यों में था, ऐसा मुझे कहा जाता है। मैं स्वतंत्रता के 2 वर्ष बाद पैदा हुआ हूं। मैंने दरभंगा के लिए, दरभंगा जिले में 4 चीनी मिले हैं, बहुत कुछ देखा है, और अब उनको टूटते हुए भी देखा। पिछले महीने चीनी मिल की रेलवे लाइन भी चोरी हो गई, इंजन भी चोरी हो गई, तो वो टूटते हुए भी देखा है। ऐसा क्या हो गया हमारी नीति में जो हम इतने स्ट्रांग, नौकरी के लिए कोई गांव से नहीं जाता था, खेती, पढ़े लिखे लोग भी खेती में रहते थे, उस पर निर्भर करते थे। ऐसा क्या हो गया कि अचानक पिछले 30-40 वर्षों में सब कुछ समाप्त हो गया? एग्रीकल्चर में तो यहाँ आधुनिकता नाम की चीज, कम से कम मैं दरभंगा जिले की बात कर सकता हूँ, न एक नहर, न एक सिंचाई, न बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई नया कार्यक्रम, न नदी की मैनेजमेंट, जल संसाधन के लिए कुछ नया कार्यक्रम, बल्कि जो नदियां थीं वो इतनी गंदी हो गई टैनरी वगैरह की वजह से कि अब उनमें आप स्नान, भैंसे भी उसका पानी नहीं, मवेशी भी उसका पानी नहीं पी सकते।
ऐसा क्या हो गया? क्या हम इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का कोई संपर्क आपके टॉक से अगर है तो ठीक है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात तो आपने बहुत ही सही कही है। मैं यह विश्वास करता हूं कि हम लोगों के पास जो कृषि है, अभी भी अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो हमारी बेरोजगारी, हमारी दरिद्रता, हमारी गरीबी समाप्त कर सकती है। लेकिन हम जैसा कॉमन सेंस कहता है वैसा तो करते ही नहीं है। क्यों नहीं हम बेच सकते? मैं दक्षिण में 40-45 वर्षों तक रहा हूँ। यहाँ देखा है एक गुलाब का फूल, एक मिर्ची लंदन में, दुबई में बिकते हुए ऊंची कीमतों पर। मेरे गांव से तो अभी अब एयरपोर्ट हो भी गया, तभी अचार बम्बई में बेचने में परेशानी है। तो ये मार्केटिंग का एक और भी आयाम लॉजिस्टिक्स का है। अगर आप इन चीजों पर आपको लगे टाइम है और आपको लगे कि ये समीचीन है, इस पर चर्चा करनी चाहिए तो कीजिए, नहीं तो अगले कभी किसी सेमिनार में प्रदीप जी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर चर्चा हो। धन्यवाद। अवधेश जी कुछ बोल रहे थे, यदि अरविंद जी चाहें तो अवधेश जी से सवाल ले सकते हैं। तो एक चीज जो मैं चाह रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं हो जाए तो हम लोग उसका सार खो देंगे उसके आंसर्स का। तो हम लोग ना ग्रुप में क्वेश्चंस ले सकते हैं, 3-4 क्वेश्चंस एक साथ लेकर फिर मनीष उसको एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर करते हैं। तो दोनों साइड से अच्छा होगा, मनीष भी ट्रैक रख पाएंगे और हम लोग भी उसके आंसर्स का ट्रैक रख पाएंगे। ठीक है। सो एक ग्रुप एक बार आंसर देके फिर हम लोग, वो पुष्कर जी का हाथ उठा हुआ है और मुझे लगता है कि अवधेश जी भी होंगे अभी। तो एक राउंड मनीष में, तो मे बी यू, हाँ अच्छा, मैं इस ये राउंड कर लूं पहले। हाँ, उसके बाद ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हाँ, कम क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस हो जाएगा, फिर देन विल, है ना, ग्रुप में क्वेश्चंस ले लेंगे। तो मैं आखिरी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं जो श्री सर पूछ रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 30-40 साल के जो दौरान में हम लोग एक पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं, एक आर्थिक पॉलिसी, आर्थिक नीति को लेकर के जो चल रहे हैं पिछले हमारे देश के अंदर में, उसका बहुत बड़ा रोल है इस स्थिति में जहाँ पे बिहार हो, चाहे एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो पूरे देश एक तरीके से उस तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहा है। बेसिकली बात यह है कि डेवलपमेंट की जो थ्योरीज है, डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, उसके अंदर में एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। जो भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं, वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और कृषि का कम होना और बाकी सारे सेक्टर्स का ऊपर आना एक चीज का इंडिकेटर है कि वो सोसाइटी डेवलप कर रहा है। सो बेसिकली डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स for understanding development of any particular economy or society. So this is the summary of most of the development theories or the economic development theories. अब इसके अंदर में ये जो चीज है कि डिक्लाइन कई बार होता है और कई बार जबरदस्ती किया भी जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि डिक्लाइन इस सेंस में आप ले कि एक सोसाइटी जो कुछ लोग उसमें एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर प्रॉस्पर कर रहा है, तो एग्रीकल्चर से जनरेट होने वाला सरप्लस या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होने वाले परिवार का कुछ सदस्य कहीं बाहर जाकर के भी काम कर रहा है, या कहीं बाहर जाकर के उसकी पढ़ाई में उसकी मदद मिल रही है, या फिर कोई दूसरा काम करने के लिए उसको पूंजी की व्यवस्था हो जा रही है वहां से। तो अगर एग्रीकल्चर प्रॉस्पर करता है और तब लोग निकल करके एग्रीकल्चर से बाहर जाते हैं, तब तो आप कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर हो सकता है, डिक्लाइन ऑफ प्रेजेंस इन एग्रीकल्चर। लेकिन अगर मान लीजिए कि जबरदस्ती किसी को धक्का दे करके आप एग्रीकल्चर से बाहर करते हैं, आप एक क्राइसिस पैदा करके एग्रीकल्चर से बाहर करते हैं, तब मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से, डॉक्टर अवनिंद्र ठाकुर इज हियर, सो ही कैन आल्सो पॉइंट आउट कि अगर हम लोगों को धक्का देकर एग्रीकल्चर से बाहर निकाल करके ये कहें कि एग्रीरियन ट्रांजिशन हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रहा है और ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, तो ऐसा बिल्कुल गलत समझा जाना चाहिए। ऐसा हम लोग मानते हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासकर जो मेन स्ट्रीम अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, वो इसी को मान लेते हैं कि ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है। इसीलिए इस तरह के डिक्लाइन को, मूविंग आउटसाइड एग्रीकल्चर को लोग एक पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर पर ट्रीट करने लगे। और इसी पैमाने से आप बिहार की स्थिति को भी बहुत हद तक समझ सकते हैं कि बिहार में भी, जैसे हम लोग जब भी बिहार के जिक्र करते हैं तो बिहार हिंदुस्तान में दूसरा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है बाहर।
और माइग्रेशन भी क्या होता है, एजुकेशन के लिए ज्यादा, एजुकेशन के लिए भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है मजदूरी करने के लिए। बाहर लोग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल एक गांव के अंदर में था, उससे समझिए तो बुरी स्थिति में वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे वो उसकी तलाश में चले जाते हैं। तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस को भी लोग इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे जब तक ट्रीट करते रहेंगे, तब तक इस तरह की समस्या तो बनी जाएगी। और इसीलिए हमें ये जरूरत है कि एग्रीकल्चर के अंदर में डेवलपमेंट के पैमाने कैसे ढूंढे जाए, कैसे एग्रीकल्चर के अंदर में और एग्रीकल्चर से जुड़ते हुए इंडस्ट्रियल और जो नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट्स हैं, उसके साथ में इसको जोड़ कर किस तरह से डेवलपमेंट के पैरामीटर्स बनाए जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार के जैसे राज्यों के लिए। जहां तक बात है कि एग्रीरियन क्राइसिस बिहार का और एग्रीरियन क्राइसिस देश के बाकी हिस्सों के बीच के अंतर का, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो उस हर स्टेट का एक अपना पॉलिटिकल इकोनॉमी है, हर स्टेट का एक अपना ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उस सिचुएशन के आधार पे बहुत सारा चीज निर्भर करता है, जिसकी वजह से उनका क्राइसिस बहुत हद तक उनका अपना क्राइसिस होगा। जो सॉल्यूशन पंजाब का है, जरूरी नहीं कि वही सॉल्यूशन बिहार के अंदर में भी मिले। तो एग्रेरियन क्राइसिस डिफरेंट तो है, जैसे कि बिहार के अंदर में मैंने जो नोट किया और बहुत सारे लोगों ने नोट किया, और अवनिंद्र सर ने भी उसको कई बार लिखा है कि फ्लड को भी एक जो सिचुएशन है, जो रेगुलर फ्रिक्वेंट फ्लड है बिहार के केस में, वो भी एक बहुत बड़ा हेडेक है, खासकर एग्रीकल्चर के लिए भी। लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ फ्लड के ऊपर में डिपेंड कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो बैकवर्ड लिंकेजेस है, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम में, जब मैं साउथ बिहार के अंदर में सर्वे कर रहा था, तो लोग मुझे बता रहे थे कि पहले जो यहाँ पे सिस्टम हुआ करता था आहर पाइन का, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया इवेंचुअली, जब इन द प्रोग्रेस ऑफ सो कॉल्ड डेवलपमेंट वो डिस्ट्रॉय होता चला गया। उस डिस्ट्रॉय होने के चक्कर में जो इरिगेशन की समस्या है वो वहां पे भी हो गई। तो एक तरफ आपको फ्लड हो जाता है उत्तर बिहार में, तो वहीं दक्षिण बिहार में कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि वो सूखा प्रभावित हो गया, जिसकी वजह से प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाया। तो ये जो स्थिति है बिहार के केस में, वो कुछ हद तक बिहार के एग्रेरियन क्राइसिस को डिफरेंट बनाती है। जहां तक बात है पंजाब का, पंजाब के अंदर में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रॉस्पर है। ये बात बिल्कुल सही है कि पंजाब के फार्मर बिहार के फार्मर की तुलना में बेहतर है उनकी स्थिति, लेकिन उनके जो नेचर ऑफ क्राइसिस है या उनके नेचर ऑफ इंटरेक्शन विद नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट है, वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि वहां पे जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो इलाका होता है वो, और या फिर ऐसे कहिए कि हिमालयन फुट है, वो वाला जो इलाका है, वहां पे बासमती की खेती है। बासमती की खेती पे जो लोग ज्यादातर निर्भर हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट को ज्यादा देखते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करता है, उनके प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से इनकी आर्थिक स्थिति भी फ्लक्चुएट करती है। तो जिस साल 2017-18 में जब मैं सर्वे करने के लिए गया पंजाब में, अमृतसर में, तो उससे ठीक एक साल पहले अच्छा प्राइस मिला था किसानों को। तो बहुत सारे, लगभग सभी लोगों ने बासमती की खेती की। लेकिन जिस साल मैं सर्वे कर रहा था, उसके बाद जब मुझे बात पता चली कि जो प्राइस पिछले साल मिला था, वो प्राइस अब टूट चुका है। तो किसानों को ये बासमती का उचित कीमत नहीं मिल पा रहा है। तो उनको घाटा तो नहीं हुआ, लेकिन जो फायदा उनको उन्होंने एंटिसिपेट किया था, वो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट उनको नहीं मिला। तो ये फ्लक्चुएशन की स्थिति वहां पे पैदा होती है। दूसरा जो स्थिति है वो ये है कि जो कमीशन एजेंट है वहां के मंडी में, ये जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय भी बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो प्रोग्रेसिव सेक्शन के अंदर में है, वो दबी जुबान में इस बात को कह रहे थे कि कमीशन एजेंट वाले चीज में क्या है। तो कमीशन एजेंट वाली जो चीज है, उसके अंदर में वैसा नहीं है कि वो 100% लीकेज प्रूफ है। वो बेहतर हो सकता है क्योंकि उसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। कमीशन एजेंट वाले में क्या होता है कि किसान को जो कमीशन एजेंट है वो एडवांस पेमेंट देता है। एडवांस पेमेंट बेसिकली एक तरह का बॉन्डिंग का काम करता है किसान और कमीशन एजेंट के बीच का। किसान को ये कहा जाता है कि आपको अपना फसल मुझे ही बेचना पड़ेगा, कमीशन एजेंट पैसा देने के टाइम पे ये कहता है, और वो पैसा ऐसा किसान समझता है कि एडवांस पेमेंट है। लेकिन जब वो बेचने के लिए जाता है किसान उस अनाज को उसी कमीशन एजेंट के पास, तो उस पे 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट काटा जाता है। मतलब 24% का इंटरेस्ट रेट काट लिया जाता है। 24% का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। एक तरीके का ये, अगर किसान डिफॉल्ट करता है और वो बेचने से मना कर देता है, तो उस स्थिति में किसान को जो सिंपल इंटरेस्ट था
2% पर मंथ का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट। हालांकि ऐसा बहुत कम ऐसा नहीं होता है जनरली, लेकिन 24% का इंटरेस्ट रेट फिर भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप हिसाब करके देखें, जो पंजाब का मैंने जो हिसाब करके देखा कि उनका मेन अर्निंग जो है, इस तरह का जो एडवांस पेमेंट, सो कॉल्ड एडवांस पेमेंट है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर कमीशन एजेंट्स। So this is how they are in the debt trap, some sort of debt trap, farmers in Punjab. So उनका जो एग्रेरियन क्राइसिस है, उनका जो क्राइसिस है, वो वहां पे जो कॉन्क्रीट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिहार के केस में जो यहाँ पे कोई कमीशन एजेंट का सिचुएशन ही नहीं है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ही नहीं है, तो वो चीज है। इसी से जुड़ता हुआ सवाल जो मैंने अभी बासमती का एग्जांपल दिया, पंजाब बिहार के केस में एक चीज हुआ है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं है तो व्हीट और पैडी को कल्टीवेट करने से आपको नुकसान हो रहा है, आप नहीं कीजिएगा। आपको एक अल्टरनेटिव मिल रहा है क्या, वो ये, क्योंकि एक मार्केट आपके पास में मेज का, तो किसान धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। मेज को प्रमोट करने में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी लगी हुई थी, मोनसेंटो, सिजेंटा, इस तरह की बहुत सारी कंपनी, वो सारी कंपनी भी चाहती थी कि लोग मेज को प्रोड्यूस करने पे लगे, और उन्होंने अपना प्रमोट किया उसको, और प्रोक्योरमेंट भी उसका होता है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट। लेकिन प्राइवेट प्रोक्योरमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये है, जो अवनीश सर के पेपर में भी हाईलाइट हो रहा है, कि बिना पब्लिक प्रोक्योरमेंट के प्रेजेंस के जो प्राइस आपको फ्री मार्केट से मिलता है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग प्राइस होता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। वो किस साल आपको घाटा देगा, किस साल आपको नफा देगा, ये आपको नहीं पता है, वो बहुत ही रिस्की है। तो फार्मर इन बिहार आर फेसिंग रिस्क ऑफ फ्लड, नेचुरल क्लाइमेटी का रिस्क आप झेल रहे हैं, और उसके साथ फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो भी आप झेल रहे हैं। तो इतना मल्टीपल रिस्क का लेयर है बिहार के केस में, उसके वजह से जो स्थिति है वो गंभीर होती है बिहार के अंदर। अवधेश जी का सवाल अब लिया जाए। हाँ, नहीं, पुष्कर जी और पहले अवधेश जी का लीजिए। अवधेश, हाँ, अवधेश जी, इन तीनों, अवधेश जी, पुष्कर जी, आदर्श, तीनों का एक साथ ले लेते हैं। हाँ, अवधेश जी। सर नमस्कार सर, मनीष जी नमस्कार, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। आवाज आ रही है सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल। कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ आवाज आ रही है। सर मेरा एक छोटा सा क्लियरिटी जानना चाहता था मैं शुरू में भी, जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में बात हो रही, तो एक 2012 में आरबीआई के एक पेपर आई थी ईपीडब्ल्यू में, उसने एनसीपीएच की नाम किया था, नॉन कल्टिवेटिंग पीजेंट हाउस होल्ड की। तो जहां तक हम बिहार में ही हैं, तो हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन इस पे रिलेटेड है कि ज्यादातर जो जिनके पास लैंड है वो नॉन कल्टिवेटिंग पीजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और जो करने वाले लोग हैं वो मार्जिनल फार्मर, या जो लोग करते हैं जो एजुकेटेड भी नहीं है एग्रीकल्चर से, वो लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी है या यील्ड है वो मार्जिनली हो जाता है। तो मे भी हो सकता है कि बैकवर्ड लिंकेज में ये भी एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन था सर आपसे, ये तो मेरा क्लियरिटी के लिए था, कि क्या हम नॉन एग्रीकल्चर के बजाय क्या नॉन म्यूट हो गए। नॉन कल्टिवेटिंग पीजेंट हाउस होल्ड की तरफ डिस्कस करें, तो क्या ये हो सकता है अप्रोप्रिएट? दूसरा ये नहीं, था फिर से कि रिपीट कीजिएगा, आप सवाल क्या फिर से बोल सकते हैं? आपकी आवाज बीच में चली गई थी। ओके सर, मेरा था कि नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट के जगह पर क्या हम नॉन कल्टिवेटिंग पीजेंट हाउस होल्ड की बात कर सकते हैं? क्योंकि जो हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये आरबीआई की एक पेपर थी 2012 में, आंध्रा में उन्होंने 10 विलेज का सर्वे करके जी वो पार्ट सुन लिया था मैंने। दूसरे सवाल पे आप और दूसरा सवाल हम कर रहे हैं सर कि एक आपने कटिहार के वो बेल्ट लिए जहाँ कोसी जो फ्लड इफेक्ट है, जो बिहार का सूख नदी है, सर्वे के दौरान वो भी एक है कि सर वहाँ तो ऑलरेडी बाढ़ आती ही रहती है। दूसरा पटना जोन में, पटना डिस्ट्रिक्ट में जो आपने जो गाँव लिए हैं, मे भी जिस पार्ट का हो, लेकिन मेरा जो है कि यहाँ एक रोहतास और बक्सर भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पैडी के लिए, खासकर पैडी के लिए कटोरा के काम करता है, बॉल ऑफ द पैडी कहलाता है। तो वहां पर जो सीन है, क्योंकि मैंने पीएचडी के दौरान अगेन पैडी पर ही काम किया था सर, और उसमें मैंने रोहतास का सर्वे किया था, 2 विलेज, और 2 विलेज मैंने मधुबनी का। रोहतास मैंने इरिगेटेड जोन के नाम से, इरिगेटेड एरिया जिसमें 98%
जो एरिया है ऑलमोस्ट 100% एरिया इरिगेटेड है बाय इलेक्ट्रिसिटी और एज पर डेहरी ऑनसोन के कारण भी। और दूसरा मधुबनी पूरी तरह रेनफेड जोन था, तो मैंने उसमें पैडी पर ही काम किया था। तो वहां पर खासकर रोहतास, मधुबनी की बात नहीं कर रहे हैं, रोहतास में जो प्रोडक्टिविटी है और जो कंसेप्ट है वहाँ पैडी के लिए, वो जो इधर है, इधर जो आप पटना और कटिहार के साइड में देखिए उससे अलग ही, बहुत ही अलग है। वहाँ हर ब्लॉक में, हर एरिया में करीबन नहीं तो राइस मिल की संख्या इतनी होगी जितना कि पूरे हमें लगता है कि बिहार में कहीं ना हो, इतनी राइस मिल की संख्या है। तो वहाँ जो भी, हम वहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहे सर, लेकिन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है रोहतास में, तो वो इक्विवेलेंट तो कहते हैं पंजाब की तरह प्रोडक्शन होता है। इवन एक सवाल क्या है सर, उसमें मेरा ये सवाल था कि आपने जो एरिया चूज किया है उस पर मेरा सवाल था कि इसके बदले अगर रोहतास चूज कर तो शायद बेहतर होता। तो उसमें एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मेरे सर्वे के दौरान मैंने वहां पर खासकर एक जो टीनेंट्स था, जो एजुकेटेड टीनेंट्स था, वहाँ खासकर रोहतास के लोग ज्यादातर माइग्रेटेड नहीं होते हैं, बहुत कम, खासकर इस जोन में, और दूसरे जोन में जाते हो। लेकिन टीनेंट का मेरा एक एग्जाम्पल था कि वहां पर कुछ टीनेंट मुझे ऐसे मिले जिनकी जो पर एनम पैडी से, जो मैं प्रॉफिट नहीं देख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ पैडी जो था वो कई गुना ज्यादा था, बेहतर था उसका प्रोडक्शन का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा था। तो उनको ज्यादा प्रॉफिट दिख रही थी। वो कह रहे थे साल के हम 5-6 लाख ऐसे ही निकाल लेते हैं सर, 4-5 एकड़ 6 एकड़ जमीन लेके रोहतास में खासकर। तो वो लोग, उनका एक कंसेप्ट था। तो वो सर हमको लगता है कि अगर सैंपल से विलेज सिलेक्शन में अगर रोहतास का लेते तो ज्यादा और अच्छा पिक्चर आता। तो सर ये 2 क्वेश्चन था। पुष्कर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मनीष सर, मेरा नाम पुष्कर है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में, और मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज पे स्टडी करता हूँ। और मेरी स्टडी एक कंपैरेटिव स्टडी है बिहार और महाराष्ट्र का। अभी कुछ समय पहले मैंने अपना फील्ड वर्क कंप्लीट किया है, तो मेरे सवाल इसी से जुड़े थे। पहला तो ये कि पैक्स को लेके बहुत डिसकंटेंट है फार्मर्स के बीच, और प्रोक्योरमेंट एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि पैक्स को लेके पॉलिसी इनसाइट्स नहीं है क्या, कि इतने लंबे समय से वो चल रहा है और इतना डिसकंटेंट है फार्मर्स के बावजूद इसके वो कंटिन्यू कर रहा है, हाईली पॉलिटिसाइज्ड बॉडी है वो। एक ये हो गया। दूसरा ये कि आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जो बने हुए हैं उससे आप प्रोक्योरमेंट की क्या संभावना देखते हैं, उसका क्या स्कोप हो सकता है फ्यूचर में एफपीसी के माध्यम से क्रॉप प्रोड्यूस। तीसरा ये है कि जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट था कुछ समय पहले लार्ज स्केल पे, लेकिन इसके रिफ्लेक्शन बिहार में नहीं दिखे। और जैसा डॉक्टर राजेश्वरन, अपना बंद कर लीजिए माइक, प्लीज म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर राजेश्वरन, प्लीज म्यूट योर माइक। Manish sir, as you said that there is a prevailing farmer distress in Bihar, and recently there was a big farmer protest in northern part of the country, but उसका कोई रिफ्लेक्शन बिहार में नहीं दिखा। तो इसको लेके आप जैसा साउंड कर रहे हैं, आप मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका क्या मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है इस चीज को लेके कि बिहार में फार्मर प्रोटेस्ट क्यों नहीं रहा? थैंक यू। मुझे लगता है देवानंद कामत से पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो ये 3 हो जाएंगे। हाँ, और सर आदर्श शेर। आदर्श, हाँ सर, मेरा बहुत जनरल सा सवाल था। एक्चुअली बीच में इंडस्ट्रीज की बात हुई, तो मेरा सवाल बस ये था कि आजकल जैसे हम पूरे देश में देखें कि थोड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा एक बूम आया है कि मतलब अलग अलग सेक्टर्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे इवन अभी थोड़े दिनों पहले मैं कोलकाता गया था, तो वहां पर भी काफी सारा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखा। उड़ीसा में बहुत ज्यादा हो रहा है कि आईटी हब वगैरह बनाने की तैयारियां हो रही है। तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट हमको बिहार में क्यों नहीं देखने को मिलता है? एंड अगर अभी जैसे 2023 से अगर हम ऐसा इन्वेस्टमेंट अभी बिहार में देखें कि अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो और ऐसा हो, तो हाउ विल इट हेल्प द इकोनॉमी ऑफ बिहार एंड हाउ विल इट हेल्प इन द माइग्रेशन प्रॉब्लम? थैंक यू। तो ये मुझे लगता है मनीष, अब इन
तीनों को क्लब करके हाँ फिर हम नेक्स्ट राउंड अगर टाइम मिला तो ले सकेंगे। ठीक है, जहां तक सवाल था ये नॉन कल्टीवेशन हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट का, जब मैं नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट बेसिकली कह रहा हूँ तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि एक चीज हम लोग को जो समझना पड़ेगा ना, मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो जिसको फार्म से लेकर के कंजम्पशन तक, फाइनल कंजम्पशन तक का जो सफर है तय करता है, वो ऐसा नहीं है कि खेत में धान उपज रहा है और हम धान खा रहे हैं। हम वास्तव में खाते हैं वो खाते हैं चावल, उसको एक प्रोसेस करके, उसके बीच में एक ट्रांजेक्शन है, उसके बीच में एक्सचेंज है। सो देयर आर वेरियस थिंग्स बिटवीन आफ्टर एग्रीकल्चर। तो नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट बेसिकली ये कहता है एग्रीकल्चर वैल्यू सिस्टम का कि फार्म से लेकर के फाइनली प्लेट तक जब कुछ पहुंच रहा है तो ये लंबा सफर तय करने में खेती का एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा जो नॉन एग्रीकल्चरल है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन होगा, या फिर कोई ट्रेडर होगा, या फिर कोई राइस मिल होगा, या फिर कोई अदर प्रोसेसिंग एजेंसी होगा, या प्रोसेसिंग मिल्स होगा। तो ये सारे सेगमेंट्स को हम नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट ले रहे हैं। अब ये चीज इसलिए चर्चा करने के लिए जरूरत ये है क्योंकि जब हम सरप्लस के फ्लो की बात कर रहे हैं तो आखिर हम क्यों कर रहे थे ये एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो सरप्लस है वो जनरेट तो हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर में, लेकिन उसका एप्रोप्रिएशन नॉन एग्रीकल्चर में जाकर के हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज बिटवीन दिस टू। तो इसीलिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहां तक मेरे सैंपल को लेकर के जो सवाल थी, तो मैंने ऑलरेडी एक पायलट सर्वे किया था रोहतास के अंदर में। तो रोहतास के अंदर में मैंने देखा था, लेकिन जो मूल रूप से जो हमारा मेन काम था वो चीज ये समझना कि जो एक्टर्स हैं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के, चाहे हम पंजाब में चले जाए, चाहे बिहार में चले जाए, या बिहार में 2-3 जगह का, हम ये देखना चाह रहे थे कि एक ही कमोडिटी के चेन के अंदर में, तो एक सप्लाई सिस्टम के अंदर में, वैल्यू सिस्टम के अंदर में जो एग्रीकल्चरल पार्टिसिपेंट हैं, एग्रीकल्चर एक्टर्स हैं, और जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टर्स हैं, उनकी आपस में किस तरह का तुलना हम देख सकते हैं। वही तुलना देखने के काम था। तो आप रोहतास का एग्जाम्पल लीजिए जो मेरे पायलट सर्वे से निकल के आया, चाहे वो पटना का एग्जाम्पल लीजिए जो मैंने अभी आपके सामने में रखा, चाहे वो कटिहार का ले लीजिए, या फिर चाहे पंजाब के अमृतसर और पटियाला डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए। आपको हर जगह पे ये मिलेगा कि वैल्यू जनरेट हो रहा है, और जो रिटर्न फार्मर को मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा रिटर्न नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट को मिल रहा है। और जहां पे जितना बेहतर चेन है वहां पे इंडस्ट्रियल जो सेटअप है एग्रीकल्चर के अंदर में, जैसे राइस मिल का जो रिटर्न है पंजाब के अंदर में, वो मल्टीपल टाइम से बिहार के रिटर्न के। तो ये सारी चीजें का जो देखने का उद्देश्य था वो यही था कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का रोल क्या है आपस में, और उस जो डिफरेंट सैंपल आप रोहतास का भी एग्जांपल लेंगे, सेम रिजल्ट आपको उसमें आए। तो वो उसमें कोई अंतर नहीं है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से ये इस तरह से था। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पुष्कर ने पूछा एक कि बिहार के फार्मर ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो ये बहुत पहले पटना में कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहां पे भी लोगों ने यही सवाल पूछा कि बिहार के फार्मर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उसका सवाल उसको जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ वो ये है कि बिहार के फार्मर एक सिस्टम पब्लिक प्रोक्योरमेंट का है पूरे हिंदुस्तान में। पब्लिक प्रोक्योरमेंट लार्जली 2 प्रोडक्ट को प्रोक्योर करती है, राइस, पैडी और व्हीट। अगर आप पैडी और व्हीट का प्रोक्योरमेंट बिहार के अंदर में देखें, हिस्टोरिकली देखें, लास्ट 10 साल का एटलीस्ट देख लीजिए आप निकाल के, या पिछले 10-15 साल का, आप ये चीज पाएंगे कि जो बिहार में पब्लिक प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट रेशियो है बहुत मिनिमल है, बहुत नेग्लिजिबल है। मैंने भी अभी कुछ नंबर्स आपके सामने में रखे। तो बात ये है कि जिनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम का फायदा समझ में नहीं आया, जिनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम कभी मिला नहीं ढंग का, तो वो उसके डिस्ट्रक्शन को लेकर के सवाल क्यों उठाएंगे या उसको लेकर के क्यों सोचेंगे। बात यही है कि किसी भी बदलाव के लिए, किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए, या फिर रिवॉल्यूशन पाथ में जाने के लिए जरूरत है कंससनेस होने की। वो कंससनेस आपको तभी आएगा जब आप उस चीज को कभी महसूस किए हों। जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को महसूस ही नहीं किया बिहार के फार्मर ने, वो मजदूर के तौर पर रहे हमेशा, जो किसान हो चाहे खेतिहर मजदूर हो, लगभग उनकी स्थिति बराबर हो जाती है वहां पे बिहार में।
तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। तो इसमें किसानों को आप दोष नहीं दे सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो उसमें किसानों का दोष नहीं है, बल्कि उसमें दोष इस बात का है कि एक वो लार्जर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन जो उनके आसपास बनता रहा पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में, वो जिम्मेदार है इसके लिए, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। दूसरा सवाल जो आपका था कि पैक्स को लेकर के, तो पैक्स या फिर एफपीओ, दोनों चीजें तभी काम कारगर साबित होंगी जब आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट जैसा चीज या पब्लिक प्रोक्योरमेंट इंश्योर किया जाए। जैसा कि अवनींद्र सर के पेपर में बार बार अपने लेक्चर में भी कोट करता हूं कई बार, उसमें एक चीज बहुत ही क्लियर है और बहुत ही स्पष्ट है, वो एक स्ट्रेट लाइन है हमारे सामने कि अगर आपको एफपीओ को भी इफेक्टिव बनाना है या पैक्स को इफेक्टिव बनाना है या फिर किसी भी एजेंसीज को इफेक्टिव बनाना है, खासकर प्रोक्योरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर रिटर्न टू फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फार्मर को कितना पैसा उससे मिल रहा है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना है तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हर सिस्टम के अंदर में पब्लिक प्रोक्योरमेंट बैकबोन की तरह है। अगर आपके पास में पैक्स है लेकिन पैक्स 5% को ही प्रोक्योर कर रही है, 95% को ओपन मार्केट में फेंक दे रही है, तो आप वो चीज उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पैक्स इफेक्टिव होगी। एफपीओ हो, एफपीओ के केस में भी अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के या फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के इक्विवेलेंट प्राइस इंश्योर न किया जाए, अगर एमएसपी इंश्योर न किया जाए, तब तक एफपीओ भी इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो चाहे आप कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बना लीजिए एफपीओ का, चाहे आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बना लीजिए एफपीओ का, एफपीओ भी डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, किसी भी तरह का फॉर्मेशन हो, जब तक आप उसको एक प्राइस सिक्योरिटी से नहीं जोड़िएगा, तो अगर प्राइस सिक्योरिटी अगर उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो इफेक्टिव नहीं हो सकता है। और यही प्रॉब्लम रहा है पैक्स के साथ में। पैक्स इफेक्टिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अगर पैक्स का जो मेन रोल है तो क्रेडिट सप्लाई करने वाला और दूसरा चीज प्रोक्योरमेंट वाला, तो दोनों ही साइड से अगर वो कर सकता है तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है पैक्स। जी सर एक चीज और रह गई थी सर, बस कुछ सेकंड लूंगा सर। ये अभी नए प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं जैसे कि देहात, ये लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? एक बार फिर से बोलिएगा सवाल, मैं मिस कर गया। नए प्रोक्योरमेंट के लिए प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं जैसे कि देहात और इस तरह के और भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि एग्रीगेशन करके फार्मर से प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये इस तरह के बहुत सारे इनोवेशंस आजकल हो रहे हैं और ये सारे इनोवेशन को आपको कुछ पैरामीटर्स बना करके तो जज करने पड़ेंगे। जैसे आप सिर्फ इसी एग्जांपल में ही नहीं, आप कहीं का भी लीजिए, जैसे हिमाचल का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ, एक फर्म है, कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, और उसके बहुत अच्छे पॉलिसी सर्कल से संबंध भी है, और उसका नाम लेना खतरनाक हो सकता है, नोटिस आ सकता है आपको, तो आप भी नाम न मत लीजिएगा उसका, ठीक है। तो उन्होंने उनकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सेब के किसानों के साथ हिमाचल प्रदेश में। सेब के किसानों ने जब उपज करके उनको दिया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको वो प्राइस तो नहीं दे सकते जो हमने पहले तय किया था, प्राइस हम आपको क्या देंगे, क्योंकि प्राइस जो हमने तय किया उससे कम देंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हमने तय किया था कि एप्पल का कलर ये होना चाहिए, एप्पल का साइज ये होना चाहिए, उसकी मोटाई ये होनी चाहिए, उसका साइनिंग ये होना चाहिए, वो सारा स्पेसिफिकेशन आपका जो प्रोडक्ट लेकर के आया मार्केट अभी बेचने के लिए उससे मैच नहीं कर रहा है। तो ऑन ग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दे डिनाइड टू गिव द प्राइस दैट दे डिसाइडेड इनिशियली, दैट कंपनी, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजों के अंदर चाहे कितने भी इनोवेशन हो जाए, जब तक आप उसके साथ में प्राइस सिक्योरिटी के साथ उसको नहीं जोड़िए, तब तक ये डिजास्ट्रस मॉडल बन करके रह जाएगा। क्योंकि किसानों को एक्चुअली रिटर्न चाहिए, उन्होंने लगाया कुछ पैसा, उस पर वो एक प्रॉफिट मांग रहे हैं और वो उनकी जायज मांग है। उनका कहना कि हम अगर आपको 100 रुपए का कर रहे हैं खर्च, तो हमको कम से कम 150 रुपया दे दो रिटर्न में, जो C2 प्लस 50% का मांग कर रहे हैं, वो गलत मांग नहीं है, वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वही उनको उसी के द्वारा वो सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो चाहे कितने भी इनोवेशंस आप कर लीजिए, उसको प्राइस सिक्योरिटी के साथ नहीं जोड़िएगा, रिटर्न फार्मर को नहीं मिलेगा, तब तक आप डिस्ट्रेस से बाहर निकाल नहीं सकते उनको। अच्छा, एक बाकी क्वेश्चन समझे, मैं भी कुछ
क्योंकि मनीष ने एक पेपर का मेरे एक पेपर का भी डिस्कशन किया, तो मैं एक चीज लिंक करना चाहूंगा रोहतास के साथ भी, जो अवधेश ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप बिहार के प्राइस को देखेंगे, एवरेज प्राइसेस को, एक बहुत यूनिकनेस है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार की प्राइस सबसे कम है इंडिया में, ऑफ कोर्स वो है ही। बिहार में एवरेज प्राइस ऑफ पैडी इज द लोएस्ट, ऑलमोस्ट लोएस्ट इन इंडिया। बट द दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अवधेश जी के क्वेश्चन से लिंक करती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन वेरिएशन इन प्राइस इज ऑल्सो लोएस्ट। मतलब सभी लोगों को कम मिलता है। सो यहाँ पर हायर प्राइस वाले लोग ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, any segment of Bihar, everybody is receiving price which is much lower than average price in India. और standard deviation in fact बाकी पंजाब और बाकी जगह बहुत हाई है। कुछ फार्मर्स ज्यादा प्राइस भी मिल रहा है कुछ फार्मर्स को। बिहार ऐसी जगह है जहां ऑलमोस्ट अक्रॉस सारे डिस्ट्रिक्ट, जहां आपकी चाहे वो राइस बॉल हो, रोहतास का या कुछ भी हो, उनका जो प्राइस का जो बैंड है वो बहुत छोटा है और वो बहुत लोअर साइड में है। इसीलिए अगर कोई रोहतास में रिपोर्ट कर रहा है कि ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, सो दैट समथिंग माइट बी वेरी एक्सेप्शनल। अदरवाइज जो जनरल पिक्चर बिहार के राइस की प्रॉफिटेबिलिटी की है, दूसरा क्या है वो परसेप्शन। क्योंकि अगर आपकी प्रॉफिट निगेटिव में जा रही है, द मोमेंट यू गेट मार्जिनल प्रॉफिट इवन आउट ऑफ फील्ड, यू बिकम वेरी एक्साइटेड, ओके स्टिल यू हैव सम। और दूसरी बात ये होती है, कई बार फार्मर्स दे डोंट कैलकुलेट ऑल्सो एग्जैक्टली प्रिसाइसली। तो कई बार सेल्स और प्रॉफिट के भी डिफरेंस में की समझदारी भी बहुत जगह नहीं होती है। वही अगर सर्वे का सवाल ये हो कि आपको आमदनी कितनी हुई, तो अक्सर जो मिसलीडिंग आंसर मिलेगा। एग्जैक्टली लेकिन आप जब बारीकी से पूछते हैं सवाल और उसके बाद कैलकुलेट आप खुद से करते हैं, तब जो आंसर मिल रहा है तो वो देखना। एग्जैक्टली। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या आमदनी हो रही है वो सेल्स को रिपोर्ट करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट ऐसे प्रोडक्टिविटी की जहां तक बात है, जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, बिहार में रीजन वाइज बहुत हाई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट जो फ्लड प्रोन एरिया है। डेफिनेटली वहां का सिचुएशन और जो जहां फ्लड नहीं आ रही वहां की सिचुएशन में थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली है। बट ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि प्राइस, क्योंकि देखिए कॉस्ट का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है कहीं भी। इनफैक्ट बिहार में कॉस्ट दिखाया ही मनीष के पेपर में ज्यादा ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनपुट पंजाब में कम है। पंजाब में बहुत सारी सब्सिडीज हैं, कई सारे स्टेट्स में बहुत सारी सब्सिडीज हैं, बिहार में सब्सिडीज नहीं है। बिहार में एवरेज कॉस्ट इज वेरी हाई। और तब अगर आपको प्राइस नहीं मिल रही है चीजों की, तो प्रॉफिटेबिलिटी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे वो कितना भी आप उपजा लें। तो वो एक लार्जर क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में है। मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली स्टेट विद इन स्टेट था। मैं वही मैंने भी लिखा कि पब्लिक प्रोविजनिंग जो है बिहार में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत वीक है पंजाब के कंपैरिजन में। बिल्कुल बहुत वीक है, एग्जैक्टली। सो और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कुछ टाइम है, अगर हम ब्रीफली कुछ क्वेश्चंस ले सके तो। Can I just come in? Yes. I don't see. Please, sure. Please on your camera, Dr. Rajeshwaran. Haji, yeah. Can I talk now? Sure. Yes. Please go ahead. Since you're talking about the price, can we just see prices? As he said, there is a forward trading, there is a backward trading also. So if the price, if we can decide, specify the delivery date also, 1 month plus 1 month plus 2, T minus T plus 1, T plus 2, T plus 3, then would it not have more value? That figure which you are trying to mention, anyone, even the public, even the government does not provide that T plus 1 or T plus 2. It just gives you one single price, which is actually not representative sample of the period when the delivery would take place as such. Presumably it is on COD. That's an assumption. Maybe if you can clarify that, and we as academicians give that as a very important input to the government, as say that when you tell a price, first of course share the price, number one. Number two, is it T plus 1, T minus T plus 1, T plus 2? Would that be not valuable to the farmer as such? Yeah, thank you. I think Manish. Okay.
No, when we are talking about agriculture and the agriculture prices, basically we are focusing on a very small period. So it is not about, it may not be very significant change if like what you have said. So for example, if government announces that in a particular year, for the next cropping year, government announces the MSP in advance, so that farmers are promoted to produce, to get that particular level of price. So they consider that particular cropping season, which may be of 3-4 months only. So that T+1 or T+2 may not be very different, because whatever different actors, the price that different actors are getting in the value system are basically at this almost at the same time, right? So that's why it's very comparable. So I don't see, if I got your question correctly, then I would just say that it may not be very significant change, even if you consider the different time period. In fact, अगर मैं एक चीज ऐड करूं, जो डेटा भी क्लियर कहता है कि अराउंड 98 or something, I don't remember exactly the percentage, but overwhelming percentage of farmers are actually forced to sell their produce at the time of harvest. So farmers actually के पास ऑप्शन होर्डिंग का और वेट का नहीं होता है टाइम T+1 T+2. ये जो पूरी होर्डिंग सिस्टम है, वो जो फॉरवर्ड वैल्यू सिस्टम के जो प्लेयर्स हैं, and majority of Indian farmers are small and marginal. Small and marginal. Exactly. 86% of the Indian farmers are basically small and marginal farmers. Even large farmers, some of the large farmers are unable to hoard for some time, because the agricultural profitability is low for them also. They do not have storage facilities. So problem ये होती है कि maximum जो first hand selling होता है farmers का, वो at the time of harvest होता है जब price depressed होती है. और उनको उसका दूसरा एक problem वो भी है, जो कि institutional credit इंडिया में इतना कम है farmers को कि उनके informal credit का burden इतना ज्यादा होता है कि वो afford भी नहीं कर पाते हैं कि वो hoard कर पाए. कोई भी gain उनका उनके इंटरेस्ट पेमेंट के सामने कुछ भी नहीं है. तो बहुत सारे डायनेमिक्स जो काम करते हैं, जिसमें ये जो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, फार्मर के लिए इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, इफ यू पर्टिकुलरली इफ यू लुक एट पैडी फार्मर्स पर्टिकुलरली. यस, एक एक्सपेरिमेंट जो केरला के बारे में कहा जाता है कि केरला में कुटुंब करके एक ऑर्गेनाइजेशन या स्कीम लाया गया, जिसमें कि ग्रेन को कुछ समय तक होल्ड करके रखने की व्यवस्था की गई. और क्या कुटुम्बश्री, तो उसको क्या और जगह रेप्लिकेट करने का आपको लगता है कि उसका कुछ इसका असर पड़ेगा? क्योंकि एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि कैसे उसको थोड़ा सा डिले किया जाए सेल को, तो 25% ऑफ द वैल्यू तुरंत दे दिया जाए, 25% थोड़ा रुक करके, और बैंक से लोन लिया जा सकता है कि जिस ग्रेन के बिहाफ पर, कोलैटरल के बिहाफ पर आप ये कर सकते हैं. तो क्या ये एक आपको लगता है कि इसमें कोई है स्कोप फार्मर्स को रिलीफ देने का? नहीं, कुटुम्बश्री का जो मैंने भी अपने प्रेजेंटेशन में आखिरी में यही कहा था कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. क्या हम लोग एक कोऑपरेटिव, कुटुम्बश्री बेसिकली एक तरीके का कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है. और हिंदुस्तान में जिस तरह का किसानों का जो स्थिति है, जैसा मैंने अभी भी बताया कि 86% ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर बेसिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो अगर उसको इंडिविजुअली इस सिचुएशन में डाल दिया जाए कि वो होल्ड कर ले और प्राइस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या फिर कुछ कलेक्टिवली ऐसा करे, तो कलेक्टिवली ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअली ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स को लेकर के अगर कोई प्रोजेक्ट है तो दैट शुड बी वेलकम. लेकिन कलेक्टिवाइजेशन से स्कोप क्या होना चाहिए, दैट इज द मेन क्वेश्चन. द स्कोप शुड बी टू गेट टू फोकस ऑन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड द प्राइस दैट कैन गारंटी सम लेवल ऑफ प्रॉफिट टू द फार्मर्स. तो ये जो मेन चीज है ना, इसको अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो कलेक्टिवाइजेशन कैन बी वन इंटरेस्टिंग टूल कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर में वो कर सके. कुटुम्बश्री में है वो संभव है कि हम लोग कर सकते हैं वहां पे. मनीष जी कुछ बोलना चाहते हैं? Thank you, Manish ji, for wonderful paper. Thank you, sir. I just have a couple of queries. One is that do you think that if we revive
food processing units, rural food processing, traditional food processing unit with some modification. Can that take care of some of the issues that we are handling? That is one question. Second is that this cooperative farming versus this FPOs. I was just trying to find out the provision of FPO, and finally I have discovered that this is not a great idea for the farmers. I mean, you said that unless there's a lending process and the other support system, it will not work. But I think it will not work otherwise also. I was talking to the farmers that if they would like to become part of the FPO, they think they will lose control on the system completely. So they are not interested on that. So what could be other model of creating a cooperative which can take care of these things? Keeping also one very important sociological factor in mind is the caste system. So do you have some suggestion on that? And also third thing, if you can tell us kind of policy suggestions to the government of Bihar, what they should do immediately to protect farmers' interest. Yeah. Quick 5-6 suggestions. Okay, thank you, sir. Thank you for your question, sir. So what you have said regarding FPOs, I'll 100% agree with that idea that farmers would lose their control, and that's why I'm also skeptical about this model, food processing. This farmer producer organization model. But if you would look at the draft of farmer producer organization, there are different models possible within that thing. So one of the possibilities is basically there can be a cooperative system, where farmers are the member of the managing board or the board of governors, like that. That is one possibility. FPO can also be registered as cooperative society. So that is another possibility. So there are various possibilities, but in all cases, losing control, this worry of farmer is very much real. That is very much there. So regarding this revival of village level food processing unit, if that is decentralized, so what I was trying to say with using this example of paddy, that basically there is a flow of surplus from agriculture to non-agriculture segment. And if you want to prevent that leakage of surplus, then role of farmers should be guaranteed in non-agriculture segment as well. So can we think of a system where farmers are not only the producer of agricultural output, but they are also participating in the non-agricultural segment of the agriculture value system? So for example, if there is a cooperative system, like take example of some rice mill or something, if they have participation in that kind of activities, for which their output becomes input within that value system, if that is possible, then only they would be able to capture whatever they have generated. So this is what I'm trying to say from the example of paddy. If we are just reviving the food processing unit without participation of farmers in that unit, then it may not give the desired result. So this is what I'm trying to say. So the suggestion would be for government from this particular kind of experience only. So can we think of a cooperative kind of model? If not cooperative, then some other kind of model where farmers can be participant of non-agricultural segment, where farmers can provide their output and they get the guaranteed return from the system. And there should be some backward public provisioning which can guarantee that this system would run forever. So if this kind of system we can provide, if the government can make this kind of system, then obviously this may help farmers in Bihar. So, और कोई सवाल? त्रिपुरारी शरण गुप्ता जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मनीष सर, आपने बिगनिंग में जो बुक का नाम बताया था, वो बुक का नाम क्या है? म्यूट है, अनम्यूट कीजिए मनीष।
हाँ, मैं उसका लिंक अभी आपको इसी में शेयर कर देता हूँ, इसी चैट बॉक्स में। एक सेकंड दीजिएगा। तो क्वेश्चंस है हमारे पास, और नहीं तो फिर बहुत ही इंगेजिंग और बहुत ही इनरिचिंग डिस्कशन वाला सेशन रहा, खास करके बिहार के एग्रीकल्चर चुनौतियों को लेकर के। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में अभी भी सबसे ज्यादा लोग रूरल हैं, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो बिहार के लिए एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है और सबसे बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल, पॉलिसीज के लिए पोटेंशियल भी है। तो मुझे लगता है कि मनीष का पेपर इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो एक्सपेरिमेंट, जो फार्म लॉज को लेकर के इतना बड़ा डिबेट छिड़ा पूरे देश के लेवल पर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, 1.5 साल तक फार्मर्स वहां लगे रहे। मुझे लगता है कि पूरे पब्लिक पॉलिसीज को, पूरे गवर्नमेंट पॉलिसीज को बिहार का एग्जाम्पल देखना चाहिए था। जब 2006 में बिहार में एपीएमसी को रिपील किया गया और आज तक प्राइसेस बिहार की सबसे लोएस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो एक मॉडल बिहार का एक्सपेरिमेंट को देखने की जरूरत थी इस पूरे सिस्टम को शुरू करने से पहले। शायद इतना कुछ होता नहीं, शायद इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, इतनी बड़ी चीजें होती नहीं अगर बिहार के उस एक्सपेरिमेंट को देखा जाता तो। खैर, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि मनीष का पेपर काफी इंपॉर्टेंट रहा, बहुत इनरिचिंग हुआ। मुझे लगता है कि आगे भी मनीष के कई सारे काम को मैं भी कोट करता रहता हूँ काफी। चूंकि इसका फील्ड वर्क भी है, बिहार पे काम होता है, तो काफी इनरिचिंग काम होता है। और मुझे लगता है आगे भी कोई नए काम के साथ आएंगे मनीष, तो हम लोग के ज्ञानोत्सव में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। और थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो और सो मैं प्रदीप जी को हैंड ओवर करता हूँ। अब मुझे लगता है कि धन्यवाद मनीष और धन्यवाद अवनीन जी। आप दोनों ने बहुत अच्छा आज का डिस्कशन हम लोग के सामने रखा, और हम लोग तो नॉन एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं, लेकिन इसे जानने का हमें मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आगे भी अपने साथ आप लोग अच्छे और इकोनॉमिस्ट को लेकर के आएंगे और अपना प्रेजेंटेशन देंगे, हम लोगों को अवेयर कराएंगे इकोनॉमिक क्वेश्चन से। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे।